Hello students, I hope you are all well and I hope you are doing your homework on time. Okay, and let me remind you once again, for all the work that you have been doing after your half yearlies, there is to be a separate copy for your homework as well as your classwork. Okay, I have instructed about this in my earlier videos as well. Okay, but you have to have separate copies. Secondly, each and every question of construction chapter of geometry chapters, each and every question of geometry chapters is to be done in your homework copy. That is compulsory. Okay, so there is no point in asking about homeworks. Okay, all the option type questions means जिनमें ए बी सी ऑप्शन में से आपको चूज करना है, those questions can be done in your book only, but other subjective questions you have to do in your homework copy. Okay, so with this, moving on, we'll start with the theory for next exercise. Next exercise is about triangles. Okay, पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था? पिछली एक्सरसाइज में हमने ट्राइंगल्स, उसके टाइप्स पढ़े थे. वी लर्न अबाउट मीडियन एंड एल्टीट्यूड. सो नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी विल learn more about triangles. So let me draw a triangle first of all. I'm at a random, I'm making a scalene triangle. Okay, and let us name it usual A, B, C. Let me name the interior angles of this triangle X, Y and Z. Okay, why I'm naming the angles today? Because we are learning about angle sum property. So angle sum property must have something to do with angles. Okay, what is angle sum property of a triangle? The sum of all the angles, let me say interior angles, of a triangle is 180 डिग्री. मतलब कि इस ट्राइंगल में फॉर ट्राइंगल ए बी सी, इस गिवन ट्राइंगल के लिए x प्लस वाई प्लस जेड का सबका वैल्यू 180 डिग्री होगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, हमको याद करनी है. फॉर एनी ट्राइंगल दिस इज वैलिड. ठीक है, मगर अगर कभी ऐसा होता है कि तीन एंगल को ऐड करके हमारे पास 180 डिग्री आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब बहुत ही क्लियर है दैट दैट पर्टिकुलर figure is not a triangle. Okay, if sum of all three angles of certain figure is not 180 degree, then that figure necessarily is not a triangle. For it to be a triangle, it must have sum of all of its interior angle as 180 degree. Now next is exterior angle of a triangle and its properties. Okay, so first of all we should know what is an exterior angle of the triangle. In previous definition I wrote down sum of all the interior angles. Okay, so in this diagram I will show you what is the exterior angle for a triangle. Once again we have a triangle A, B, C and one of its sides has been extended. मैंने इसकी एक साइड सी बी वाली साइड एक्सटेंड कर दी बी पॉइंट पे. ठीक है, तो ये बाहर की तरफ जो एंगल बना, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. ओके, तो ये कहलाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल. अगर हम चाहें तो ये एक्सटीरियर एंगल बाकी साइड्स पे भी कर सकते हैं. जैसे कि ये ट्रायंगल बना है, रफ फिगर बना के बता रहा हूं, सी पॉइंट पे भी ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. ओके, या फिर अगर ऐसे नीचे खींच दे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. किसी भी लाइन पे ट्रायंगल की किसी भी साइड को आप आगे बढ़ा दो, ट्रायंगल की किसी भी साइड को आप आगे बढ़ा दो. ओके, किसी भी साइड से मतलब किसी भी साइड के, उस साइड को आगे बढ़ाने के बाद क्या है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो एडजेसेंट एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा. क्या कह रहा हूं मैं? सॉरी अबाउट दिस. ट्रायंगल की किसी भी साइड को एक्सटेंड करने के बाद
ट्राइंगल का उस पॉइंट पे इंटीरियर एंगल के साथ जो एडजेसेंट एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल के लिए लिखें, इट इज द एडजेसेंट एंगल ऑफ at any of the extended side of triangle on the vertex of triangle. Okay, adjacent angle of interior angle. Few more thing of at any of the extended side of triangle on the vertex of a triangle. Okay, so this BC is the extended side of the triangle. इस ट्रायंगल में ये जो इंटीरियर एंगल है जिसका पिछली बार नाम y था, इसका पड़ोसी एंगल एडजेसेंट एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? GLEL, हाँ जी, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ बोथ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। समझाए जरा आपको क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल है आपके पास, इसका नाम Z रख लिया, ये था X Y Z, इसका नाम A रख लिया, A, ये था X, ये था Y। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल A है इसकी वैल्यू क्या होगी? अंदर के अपोजिट वाले एंगल्स के सम के बराबर। ये था X, ये था Z। A की वैल्यू क्या होगी? अपोजिट एंगल A यहां पे है तो X प्लस Z, इन दोनों एंगल के सम के बराबर आपकी वैल्यू आएगी एक्सटीरियर एंगल की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम डेफिनेशन ऑलरेडी चेकआउट कर चुके थे कि ऑल द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी, इफ फॉर अ ट्रायंगल ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर है देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो व्हाट वी वांट टू नो अबाउट इक्विलेटरल ट्रायंगल? फर्स्ट ऑफ ऑल, let us write down some points regarding equilateral triangle. All its sides are equal, ये हमको पहले से ही पता है। Secondly, all of its are equal to 60 डिग्री। इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू होता है 60 डिग्री। थर्ड इज ऑल ऑफ इट्स
एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 120 डिग्री, इसके सभी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है 120 डिग्री। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट इज मीडियन, एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑल बट सेम लाइन। दिस इज यू बट सेम लाइन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आप अगर मीडियन ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर भी होगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक ही मतलब है, मीडियन ड्रॉ करो या परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सब कुछ एक ही है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, अंदर के सभी एंगल्स का वैल्यू 60 डिग्री होता है और बाहर के सभी एंगल्स का वैल्यू 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां पे क्या होता है आपके पास, सपोज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर यू। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम रख देते हैं अपन वही पुराना ए, सॉरी ए बी सी। अब मान लेते हैं कि ए बी वाली लाइन ए सी के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि इस साइड के ए बी के अपोजिट वाला एंगल, साइड ए बी के अपोजिट वाला एंगल होगा एंगल सी, और साइड ए सी के अपोजिट वाला एंगल होगा एंगल बी। तो इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो इसका मतलब ये है कि एंगल सी, ए बी के अपोजिट वाला एंगल सी और ए सी के अपोजिट वाला एंगल बी, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, एंगल ए का कुछ भी हो सकता है वैल्यू, एंगल ए डजंट मैटर। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग प्रिपेयर कीजिए, फिर हम कल एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज शुरू के 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो कंप्लीट इन देम इन योर बुक एज वेल। क्वेश्चन नंबर 1 इज टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 35 डिग्री। अभी आपको बताया कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मान लो कि तीसरा एंगल x है, तो क्या अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? बहुत ही आसान है, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 35 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 30 डिग्री गया तो 150 डिग्री, 150 डिग्री में से 35 डिग्री गया तो 115 डिग्री, 115। आपको ये बताना है कि ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है। अच्छा जी, अब टेल मी व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज 115? इज इट एन एक्यूट एंगल और इज इट एन ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल? क्या है बेटा जी, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री। तो आपका जो ट्राइंगल कहलाएगा वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। इक्विलेटरल नहीं कहला सकता क्योंकि एंगल्स अलग अलग हैं। राइट एंगल नहीं कहला सकता बिकॉज नन ऑफ द एंगल्स आर 90 डिग्री। एक्यूट एंगल नहीं कहला सकता बिकॉज वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो। अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज दैट नंबर ऑफ मीडियंस दैट कैन बी ड्रॉन इन अ ट्राइंगल इज एट मोस्ट 3 मीडियंस। वर्टेक्स से बनती है, ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, तीनों वर्टेक्स एक एक मीडियन बना सकते हैं।
तो एटमोस्ट 3 मीडियंस बनती हैं आपके ट्राइंगल में। द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेजर कितना होता है 180 डिग्री। द नंबर ऑफ एल्टीट्यूड्स दैट कैन बी ड्रॉन इन अ ट्राइंगल अगेन 3। ओके, so we'll continue with this exercise by tomorrow as well, and you can try the exercise by yourself also. Thank you for your time. Have a nice day.